So hello class, this is once again your educator Anup Kumar Singh, and as I said that today is a very something different for you. Today I will not going to see you or give you a lecture video on the SST or biology. This is something very interesting because the thing is that when I have sent this message to my friends, many of my friends like Pavan, not friends, my students, Pavan, some one girl, Ananya, नितिन, दे हैव सेड कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो आज वो बताता हूँ वो है क्या, व्हाट इज द न्यू थिंग. So let's move in the next slide. Let me first pick the pen so that I can able to elaborate the things brilliantly and nicely. So here it is. So we are going to discuss about the Indian new education policy. या फिर है क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा important रखता है. It is very very important to all of you. Now as we all know that our HRD minister is the Ramesh Pokhriyal or Nishank. So now onwards, that is the new, according to new India new policy, the HRD minister will be called by education minister, that is Ramesh Pokhriyal Nishank. यानी अब वो HRD मिनिस्टर जो ये मिनिस्ट्री थी, इसका न्यू नाम अब इसका एक न्यू नेम हो गया, दैट इज़ द एजुकेशन मिनिस्ट्री. एंड द HRD मिनिस्टर विल बी कॉल्ड बाय द इट्स नेम, दैट इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर, एंड it is none other than the Ramesh Pokhriyal Nishank. Okay, now after 34 years, this is a very very important reforms, because after 34 years first time cabinet given the nod for new education reform. 34 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है. इससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुई थी, फिर 1986 में राजीव गांधी और शायद कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी उसके तहत कुछ रिफॉर्म आए थे. सो आफ्टर 1968 एंड 1986, दिस इज द थर्ड रिफॉर्म, ये तीसरी रिफॉर्म है, राइट, यानी दो सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं. हाउएवर, in the year 1992, in the second reform it was amended, right, यानी 1968 में आया था, 1986 में आया था, और थर्ड रिफॉर्म, ये थर्ड रिफॉर्म है. और 1992 में जो हुआ था, जो सेकंड रिफॉर्म था, उस दौरान इसमें कुछ अमेंड किए गए थे, चेंज किए गए थे. अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो बनती है एक, कि the now HRD minister will be called by the education minister, right? It is the third reform. Second point, third point is that the former ISRO chief K Kasturi Rangan, right, that former ISRO chief K Kasturi Rangan headed committee submitted the new educational reforms last year to educational minister Ramesh Pokhriyal Nishank. मे बी आपको ये लास्ट नेम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ मेरा चैनल का नाम स्क्रॉल कर रहा होगा, दैट्स वाई आई एम जस्ट reading it for you, that the former ISRO chief K. Kasturi Rangan headed committee submitted the new educational reform last year to the educational minister Ramesh Pokhriyal Nishank. तो तीन चीज़ें हमें सीखने को, नई चीज़ें मिली. इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्ट्री विल कॉल्ड बाय द HRD मिनिस्टर will be called by education minister. It is the third reform. In the second reform it was amended, and it is headed by the committee, or it is based upon the committee recommended by none other than the who is that the former ISRO chief K Kasturi रंगन. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुई. अब इसमें कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी को, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु इज अबाउट टू गोइंग टू गिव द क्लास 10 एंड हु इज अबाउट टू रिसीव द हायर एजुकेशन, फॉर देम इट इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी. और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने लीक से हटकर ऐसी वीडियो बना रहा हूँ. सो ध्यान से देखो अब इसमें है क्या. नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं. जैसे कि मैंने बताया, कैबिनेट कमिटी ऑन वेडनेसडे announced that HRD ministry has been named as education ministry, as I said earlier. Okay, in this meeting the cabinet has given the acceptance in new reform of 2020. So this is a in Indian new education policy of the year 2020. So आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में आया है, बिकॉज amendments, right, schedules and laws are very very important, and whenever you are writing, mentioning any amendment, any law, any policy, always try to mention its year. So ये ईयर तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि it is the new education policy in the year 2020, and 2020 is itself very very important. COVID-19 is going on. 2020 is itself a quite famous name. So in this meeting, जब कल मीटिंग हुई बुधवार को, उसमें कैबिनेट ने बोल स्वीकारा कि जो नई रिफॉर्म है 2020 को, वो बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, उसमें सुधार ला रहा है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. वो चेंजेस क्या है, चलिए देख लेते हैं. अब इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं, दैट दिस वन, दैट इज द यूनियन कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड, द यूनियन कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड नेशनल education policy 2020 that comprise
major reforms in the higher education sector, including a target of 50% gross enrollment ratio by 2035। यानी 2035 तक जो 2035 तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो उसमें सुधार ऐसी सुधार लाई है और उसका ये टारगेट है कि भैया हम अभी के जो रेशियो है, इट मीन्स द टुडेज रेशियो, comparing today's ratio, it will going to cross more than 50% और नियर टू 50% बाई 2035। यानी 2035 तक यहाँ पे हायर एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स में जो हमारे रेशियो होंगे वो 50% की उसमें इजाफा होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगा कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी यानी भारत की अभी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, सुधर जैसा कि इस रिफॉर्म के तहत पता चल रहा है, क्योंकि 50% एनरोलमेंट होने वाली है और उन्हें टारगेट कितने साल का रखा है, 2035 का, लगभग 15 साल का टारगेट ले रखा है उन लोगों ने। इसके अलावा द बेस्ट थिंग ये आ रही है कि अब आपको ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटीज़, you know that other universities like अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, ये सारी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस विल बी अलाउड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी आप बोल सकते हो कि इसके तहत कहीं ना कहीं हमारी करेंट गवर्नमेंट, उनकी जो पॉलिसी है दैट इज़ मेक इन इंडिया, sorry I'm writing for the mouse, that's why it handwriting it seem like this, okay। सो मेक इन इंडिया, इसके तहत वो कहीं ना कहीं इसको भी एंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब 2035 तक हमारे दो 50% सीट तो इन भरेंगी, भरी जाएंगे ही, यानी एनरोलमेंट रेशियो भी हाई होने वाला है इस 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। साथ ही साथ जो टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस है, आपको पता होगा एवरी ईयर इन आवर कंट्री, जैसे इस साल मैंने वो स्क्रीनशॉट अपने स्टूडेंट्स को भेजा था, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट। ये एक NIRF एक बॉडी है जो हर साल इंडिया में कॉलेजेस, IITs की और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देती है। उसी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड भी अपना और जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ हैं, दे यूज टू गिव द रैंकिंग। सो यानी उस वक्त, यानी आपके ज़माने आते आते तक, या जो हमारी न्यू फ्यूचर है, यानी जो न्यू जनरेशन है, वो जब आएंगे तो दे विल गेट द चांस टू एनरोल और टू गेट एजुकेटेड फ्रॉम द टॉप फॉरेन कॉलेजेस across the world, because they are going to start their campuses where none other than our country India। तो दो चीज़ें तो बहुत अच्छी, ये चीज़ें मुझे पर्सनली दिस इज़ अ क्वाइट गुड इनिशिएटिव, आई लाइक इट। एंड दिस वन ऑफ कोर्स दैट इज़ द 6% ऑफ आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP। 6% ऑफ GDP विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। अगर मैं इससे पहले बात करूँ तो भारत की अभी जो सिचुएशन है, 1%, 1% क्या होता था, 1% विल बी 1% वॉज इन्वेस्टेड इन आवर हेल्थ सेक्टर, इन आवर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाते थे। और शायद बात करूं तो लगभग नियर अबाउट 1.7%, ओके। या फिर किसी की कहीं कहीं आप देखोगे कि 2%, यानी 1% या 2% के आसपास सिर्फ हमारा कहाँ इन्वेस्ट होता था GDP का, वो इन्वेस्ट होता था एजुकेशन में, वो इन्वेस्ट होता था एजुकेशन में। बट अब क्या होने वाला है, अब जो होने वाला है, अब चूंकि बिकॉज द द पीपल हु आर लिविंग ऑन स्लम्स एरिया, द हु आर वेरी वेरी पुअर, दे शुड गेट द रियल एजुकेशन, दे शुड गेट द गुड एजुकेशन। अब हमारा लगभग GDP का 6% इन्वेस्ट होगा। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस तो बनेंगे ही बनेंगे, उसमें 6% GDP का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और साथ ही साथ वी विल गेट द एनरोलमेंट रेशियो मोर देन 50% बाय द ईयर टू 2035। तो ये एक बहुत अपने आप में अच्छी पॉलिसी है, रिफॉर्म है, एंड दिस थिंग्स आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली लाइक। नाउ देयर इज मोर थिंग, लेट्स गो इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल टेल यू वो है क्या आखिर। चलिए, ये चीज़ें स्कूल्स, अब आपको पता है हम स्कूल्स के बारे में दैट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज व्हाट आई हर्ड दैट टिल 31st August, राइट, द स्कूल विल रिमेन क्लोज ड्यू टू दिस पैंडेमिक। ना अब स्कूल्स में क्या है, सबसे पहले बात है, जब भी स्कूल की बात आती है तो पेरेंट्स और हमारे हायर टीचर्स या जो भी होते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के बारे में पूछते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है दैट द बोर्ड एग्जाम्स विल बी लो स्टेक्स, यानी बोर्ड एग्जाम्स में कोई कटौती नहीं की गई है, उनको बोर्ड के तहत ही रखा गया है, राइट। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन क्लॉज डाली दी गई है, देयर इज सम conditions and clause. What are those? Let's see. Board exams will be low stakes and will test actual instead of rote learning.
What is this rote learning or rote learning? I don't know. You just pronounce by your accent. Rote learning or rote learning. What is rote learning? थ्री इडियट्स में होता है ना, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, झक मार के कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो रोट लर्निंग कहा जाता है जस्ट रट्टा मारने वाला जो लर्निंग करते थे, यानी जैसे हम पढ़ते आते थे, बुक है उसको रट्टा मारते जाओ और जाके एग्ज़ाम में छाप दो, है ना, लिख दो। तो वैसी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो है उसकी उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि उनके जो रेशियो उनको कम कर दिया गया है, दैट इज़ विल बी ऑफ लो स्टेक्स एंड विल टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टीड ऑफ रोट लर्निंग। यानी वहाँ पे अब बच्चे की जो उनका जो एक्चुअल नॉलेज है वो चेक की जाएगी। ओके, यानी मैं आपको बता दूँ, चलो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊँगा। दूसरी चीज़ लैंग्वेज, द मदर टंग विल बी द मीडियम इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड। यानी जो बच्चा जो रहेगा, नई चीज़ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो बच्चा है लगभग 5th ग्रेड तक उसको ये ऑप्शनल रहेगा, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा, इट इज़ कंपल्सरी टू ऑल ऑफ द स्कूल्स एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू taught the children at least one language paper इन देयर मदर टंग, राइट। एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए मदर टंग में, या फिर उसको उसी की भाषा में पढ़ाया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमको तो पता है, इन आवर इंडिया वी हैव अ लैंग्वेज दैट इज द इंग्लिश एंड द हिंदी, एम आई करेक्ट? बट साथ साथ फॉर एन एग्जाम्पल से द पीपल हु आर लिविंग इन द बंगाली, द पीपल हु आर लिविंग द तमिल, people who are living in the Manipur, now they can learn their own this education, they can get the education in their own mother tongue। मणिपुरी में वो लोग सीख पाएंगे, बंगाली में सीख पाएंगे, कन्नड़ या तमिल में सीख पाएंगे टिल 5th ग्रेड तक। यानी इंग्लिश हिंदी तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ वो क्या सीख रहे हैं, अपनी मदर टंग भी सीख रहे हैं। एक चीज़ और इंक्लूड की गई कि संस्कृत भी आपको डालना है, यानी एक संस्कृत कंपलसरी पेपर रहेगा ही रहेगा। तो यानी इतनी सारी भाषाएं आपको सीखने की मौका मिल रहा है एज अ कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारे वक्त में नहीं था बच्चे। Report card. The report card will be a comprehensive reports on skill and capabilities instead of just marks and statements। रिपोर्ट कार्ड में अब जो होगा आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स जो होंगे वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। स्ट्रीम्स, देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स सच एज आर्ट्स एंड साइंस sciences। All separation between vocational and academic and curricular and extracurricular will also be removed। यानी पहले क्या था, पहले हम लोग क्लास 10th पास करते थे और फिर हमारी टेंशन आता था कि यार 11th में क्या ले, अब 11th में यार मैं क्या ही लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या क्या लूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस लेंगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आता था कि हमें पीसीबी पढ़ना होगा या फिर पीसीएम पढ़ना होगा और कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेनी होगी। आर्ट्स लेनी है तो हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, फिलोसॉफी, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। लेकिन अब क्या है, अब ऐसे कुछ रिजिड सेपरेशन नहीं है। अब आप अपने मेथड के अनुसार पढ़ पाओगे, अपने चॉइस के अनुसार पढ़ पाओगे, आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, ये बोर्ड एग्ज़ाम में देखो, बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैंने बताया था कि डैट हम पढ़ते आ रहे थे कि उसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई कटौती नहीं की गई है, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिलते थे वो हमारे रिजल्ट और जो लिख के आते थे उसके बेसिस पे मिलते थे। अब क्या हो गई है, अब 3 चीज़ों के से मार्क्स मिलेंगे हमारे, राइट। फर्स्ट चीज़, वो जो आप लिख के आएंगे उसके बेसिस पे आधार पे आपको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, 100% यू विल गेट। सेकेंड चीज़ उसमें ये रिकमेंडेड की गई है कि इट मीन्स यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर सेल्फ, यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर सेल्फ। यानी आप खुद को भी आँक पाओगे और खुद को भी आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने वहाँ पे कितना लिखा है, आपका क्या स्थिति है। इट मीन्स बाई ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास परफॉर्मेंस ओवर योर परफॉर्मेंस, यू विल गेट द मार्क्स, राइट। बोर्ड आपको मार्क्स देगा, आप उसके मार्क्स के लिए बोल सकते हो। तीसरी चीज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मुझे बहुत पसंद आया, तीसरी चीज़ है वो है आपके, आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप फ्रेंड्स के ऊपर ही, राइट। तीसरी चीज़ है वो फ्रेंड्स के ऊपर है, यानी अब आपके दोस्त भी आपको मार्क्स देंगे। यानी बोर्ड का जो मार्क्स बनेगा अब इन तीनों चीज़ों के आधार पर बनेगा, यानी फ्रेंड्स के आधार पर बनेगा। हाउ फ्रेंड्स, नाउ द फ्रेंड्स विल गिव यू द मार्क्स। इट मीन्स इन द 1 ईयर इन योर स्कूल 9 10 8 में आप कैसे पढ़ते आ रहे हो, राइट। फॉर आप 10 का एग्जाम दे रहे हो, आपने एक साल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, द टीचर विल आस्क यू, द योर एजुकेटर, योर योर मेंटर विल आस्क फ्रॉम द फ्रेंड्स दैट इस बच्चे का क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके आधार पे भी आपको हो सकता है कुछ, मतलब हो सकता है नहीं, ये क्लॉज में है दैट यू विल गेट द मार्क्स एंड दोज मार्क्स विल बी गोइंग टू बी एड ऑन योर बोर्ड रिपोर्ट कार्ड्स, राइट। तो तीन चीज़ें हैं, यानी अब एक चीज़ तो पक्की हो गई
कि अब आप जो लिखोगे उससे बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, आप कितना खुद को समझ पा रहे हो, कितना आप कॉन्फिडेंट है, राइट, how you can analyze and you will get the marks. Third thing that your friends will give the marks. So it's a very important to maintain a good relations with your friends, क्योंकि अब हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, सोच लो, समझ लो, राइट, यानी अब उसके ऊपर के आपको मार्क्स मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब एक जो चीज़ अच्छी की गई दैट इज़ द 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप। पहले क्या होता था, पहले हमें 12th पास करते करते हमें 12 साल लग जाते थे। अब इसमें चीज़ हटा दी गई है दैट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर विल बी ऑफ 5+3+3+4। मैंने इसलिए यहाँ रखा है गैप दिखाने के लिए दैट इट इज़ कंसिस्ट 5+3+3+4। यानी अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो 5 3 8 8 3 11 11 + 4 15, यानी अब आपको 12th ग्रेड पास करते करते आपको 15 साल लग जाने हैं, राइट। उसने वो इसलिए की गई है टू बिकम द एजुकेशन पॉलिसी, टू बिकम द एजुकेशन मोर इजियर एंड यू विल गेट द यूनिवर्सल एजुकेशन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, पहले इस स्लाइड को बता दूं that as I said that new structure will be 5+3+3+4 and up to 5 it will be treated as the प्री स्कूल। यानी आप क्लास 5 साल के तो हो गए, लेकिन आपको काउंट, आपकी गिनती किस में होगी, एज ए प्री स्कूल स्टूडेंट। आप 5 ईयर्स तक हो जाओगे तो आप प्री स्टूडेंट ही कहलाओगे, यानी आप प्री स्कूल यानी प्री नर्सरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्री स्कूल स्टूडेंट्स ही कहलाओगे। 6 to 8 कहलाएगा मिड स्कूल या फिर middle school. 8 to 11 will be treated as the higher school and 12 onwards will be treated as the graduation. See here, that is the, now it is there 5+3+3+4 equals to 15, 15-year plan instead of 12 year as I said। यानी आप फर्स्ट 5 ईयर्स, आप अगर फर्स्ट 5 ईयर्स आप पढ़ते रहोगे, यानी आप 5 साल तक हो गए, यानी पहले के 5 साल आपको प्री, आपके नर्सरी और सही क्रॉस करने के बाद आप कौन से क्लास पास करोगे, सिर्फ सेकेंड क्लास। आपको माना जाएगा कि आपने बस सेकेंड क्लास तक पास किया, राइट। फर्स्ट 5 विल बी ट्रीटेड एज द सेकेंड क्लास। उसके बाद टिल क्लास 5 यू विल गेट द रीजनल लैंग्वेज। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि मदर टंग में आपको पढ़ाना होगा, यानी टिल क्लास 5 यू विल रीच द रीजनल लैंग्वेज साइड बाय साइड till where is the cursor, yeah, till class 5 will get the regional language, side by side you will get the संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो, है ना। संस्कृत लैंग्वेज इज कंपलसरी, चाहे आप किसी भी स्कूल में रहो, कहीं भी रहो। तो यानी आपको अपनी भाषा, अपनी बोली में भी आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग क्या होते थे, कुछ लोग अच्छे होते थे, जैसे कि बंगाली पीपल आर गुड इन बंगाली, गुड इन इंग्लिश, बट दे डोंट नो हिंदी, बट नाउ दे विल ऑल्सो लर्न द हिंदी, दे विल ऑल्सो लर्न द संस्कृत, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी भाषा आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो घर में हिंदी बोलते हैं, पर अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होगी वो लोग टिल क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दैट इज 6 to 8 यू विल गेट द वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग। मैंने बोला वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग, यानी फॉर एन एग्जांपल सपोज यू वांट टू बी एन इंजीनियर, राइट, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, आपको चलो आपको कुछ फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, ओके, यू वांट टू बिकम अ लैब फिजिशियन, आपको लेबोरेटरी मैन या कुछ ऐसा कुछ बनना है। तो यानी 6 to 8 तक अब आपको साथ जो ट्रेडिशनल स्टडी है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन के साथ साथ आप चाहो तो अब आपको अब आपको मौका मिलेगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास सीख सको एज एन स्किल ट्रेनिंग के तौर पे, यानी कौशल के तौर पे, एक एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे, वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे। आप चाहो तो फिजियोथेरेपी की क्लास सीख सको, यानी एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। आप चाहो तो आप कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो। यानी एक कौशल वाला, स्किल्स ट्रेनिंग वाला, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला आपको ऑप्शन दिया जाएगा 6 to 8 तक। 6 to 8 क्लास जब में आओगे तो वहाँ पे 2 साल आपको ये सीखना पड़ेगा। और अब ऐसा नहीं होगा डैट यू विल गो इन द क्लास 11 यू विल सिलेक्ट साइंस, इन द क्लास 9th यू हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट अ सब्जेक्ट, राइट। इन द 9th में आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा कि क्या चूज़ करना है। तो यानी इतनी अच्छी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम में आती तो यार अच्छा होता, बट यू पीपल आर लकी, आपको अपनी भाषा भी सीखने को मिल रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल रही है, रीजनल ट्रेनिंग भी, संस्कृत भी सीखने को मिल रहा है, संस्कृत सीखने को मिल रहा है सबसे बेस्ट। हाउ यू विल सेव योर मनी, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ योर पंडित जी, आपने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी गायत्री मंत्र पढ़ना है, वहाँ शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, या कुछ दुर्गा स्तुति सप्तशती पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, आप संस्कृत पढ़े रहोगे तो आप तुरंत यू कैन एनकाउंटर,
राइट। सो इट्स अ ओवरऑल अ गुड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी। अब कुछ और चीज़ें, चलिए आगे देखते हैं। वो है कि ग्रेजुएट्स की बात मैंने की ही नहीं। दैट इफ ओनली 1 ईयर स्टडी यू विल गेट द 1 ईयर सर्टिफिकेट, सॉरी देयर सर्टिफिकेट स्पेलिंग इज एरर, 1 ईयर सर्टिफिकेट विल बी गिवन। यानी कई बार ऐसा क्या होता था ना, बहुत सारे लोग अपनी कॉलेज में एडमिशन तो ले पाते, कर लेते थे, पर ग्रेजुएट्स नहीं हो पाते थे, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रॉब्लम, और मे बी सम अदर कॉज। तो अब ऐसा क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन में गए, अगर आप 1 साल पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, निकल गए, तो आपको उस 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आपका मेंशन रहेगा कि आप भाई कॉलेज में आए हो, आपने ग्रेजुएशन में एनरोल किया और आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी की है। पहले क्या था, इफ़ यू वांट टू बी द ग्रेजुएट यू हैव टू कंप्लीट द 3 ईयर्स, राइट। 3 ईयर्स, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 ईयर, मेडिकल कर रहे हो तो 5th ईयर। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपके घर में प्रॉब्लम आ गया, फिनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, जिम्मेदारी आपको निभानी है, आप 1 साल पढ़िए ड्रॉप आउट हो जाइए, 2 साल पढ़िए ड्रॉप आउट हो जाइए, फिर आके एडमिशन लीजिए, आपको उसका सर्टिफिकेट ही मिलेगा। यानी 1 साल पढ़ के निकल गए, यू विल गेट द 1 ईयर सर्टिफिकेट। अगर 2 साल पढ़ के निकल गए तो आपको डिप्लोमा की डिग्री भी दे दी जाएगी। अब देखो और क्या चाहिए, इट मीन्स यू विल गेट द डिप्लोमा डिग्री। जैसे कि डिप्लोमा उन लोगों को बोलते हैं जो पॉलिटेक्निक करते हैं, है ना, एज अ काइंड ऑफ ए जूनियर इंजीनियर। तो यू विल गेट द डिग्री और यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा which is equivalent to the that junior engineer degree, right? And last, that third year पहुंच गए, you will get the full degree। तो यानी अब यहाँ पे बहुत ही फिजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है। यानी जहाँ जो आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उसका वैल्यू होगा, उसका आपको कीमत मिलेगा, उसकी आपको सर्टिफिकेट मिल रही है, right? It is so easy and so wonderful new education policy, I just like it। अदर थिंग, दैट नो ईयर मल्टीपल रेगुलेटिंग अथॉरिटी ओनली। पहले क्या होती थी, पहले होती थी कि अब एक ही बॉडी होगी, सबको मर्ज किया जाएगा। मैं आगे पढ़ देता हूँ, दैट नो ईयर, आई थिंक आई हैव ईयरली, यहाँ पे कुछ मिस हो गया मैंने। नो मल्टीपल रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ओनली नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी फाउंड। पहले हमारे यहाँ कॉलेजेस को देखने के लिए यूजीसी था, राइट, यूजीसी थे। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनको देखने के लिए हमारे पास थी AICTE। जो IITs थे, मेडिकल कॉलेज थी, NIS थी, उनको था देखने के लिए हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन देखती थी। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE बोले तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी अब इन सारी बॉडीज़ को हटा दी जाएगी और एक ही बॉडीज़, इन सबको मर्ज करके एक ही बॉडीज़ बनाई जाएगी, जो इन सारे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज लेवल की पढ़ाई है उसको रेगुलेट करेगी। और जो किसके अंडर में काम करेगी, या फिर वो किसके अंदर फॉर्म की जाएगी, वो फॉर्म की जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत। अब ये अच्छी चीज़ है, देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इट इज़ द पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड सेम एजुकेशन। पहले क्या होता था, पहले लोगों के माइंड में ये सेट थी कि अच्छा, इफ़ आपने पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है, आपने आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो भैया सरकारी स्कूल वाले हो, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, आपको कम पता होगा, आप नॉलेजेबल नहीं है। अब नहीं, अब वो सारी चीज़ हटा दी गई। पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अब सेम वैल्यू मिलेगा, सेम सर्टिफिकेट मिलेगा, और दोनों में ही सेम प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी। इट मीन्स the certificates or the reputation will both be the same, right? अब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, यानी ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब इसका लास्ट देखते हैं, इसलिए मैंने इसको पीला कलर में रखा है। दैट व्हाट इम्पैक्ट विल द NEP, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हैव इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। यानी अब ये इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं। सबसे पहले फ़ायदे हैं, देखो, दैट NEP विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन, आप चाहो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट आई कैन गिव यू द PDF फॉर्मेट ऑफ दिस एंटायर स्लाइड। that major impact on access, equity and quality, all three of them। यानी यहाँ पे आपको तीन चीज़ों की बात की गई है। एक चीज़ें क्या है, वो है आपको वो है ये, दैट इज़ द यूनिवर्सलाइजेशन। यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द स्कूल विल बी अप टू क्लास 12, राइट, जिसके तहत 2 करोड़ बच्चों को मिलेगा एजुकेशन। इन हायर एजुकेशन एक्सेस विल बी इम्प्रूव्ड। और जो मैं बता दूं, दैट इज़ द GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो 26% से 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अनदर साढ़े, विच मीन दैट 3.5 करोड़ सीट्स जो हैं स्कूल्स में भरे जाएंगे, और इतने बच्चों का एजुकेशन, हमारे यहाँ का एजुकेशन ठीक होगा, और इतने सारे 26 to 50% वाले जो होंगे सीट्स भरने के अनुमान है, होंगे, है ना। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, यूनिवर्सलाइजेशन। यानी यूनिवर्सलाइजेशन मतलब आपको सभी तो मिल जा रहे हैं यार, वन, अब क्या चाहिए आपको, देखो अगर +12 तक आते हैं आपने,
आपने अपनी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज भी सीख ली, इंग्लिश हिंदी आप सीख ही रहे हो, स्किल ट्रेनिंग भी आप सीख ही रहे हो यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख रहे हो या कुछ भी आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, वो सारी भी आप चीज़ सीख रहे हो, साथ साथ संस्कृत भी सीख रहे हो, और क्या चाहिए, 12th तक आते आते आप लगभग हर फील्ड में मास्टर बन रहे हो, राइट। Multiple multi you know that is where is that my multidisciplinary colleges including vocational and general education will improve quality of learning, यानी सारे जो हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस थे उनको एक मर्ज किया जाएगा, तो यानी ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको डिफरेंट एजुकेशनल बॉडीज़ नहीं होंगी। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है दैट सिमिलरली रिसर्च विल बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी अब एनआरएफ भी बनाया जाएगा। अगर आप हायर चीज़ पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हाँ, और एक चीज़ मैं बताऊंगा डैट एमफिल इज हैव बीन रिमूव्ड, अब एमफिल हैज़ बीन रिमूव्ड, अब एमफिल को हटा दिया गया है। अगर आप कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ और कुछ रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड कर वर्क कर रहे हैं, देन इट विल बी रेगुलेटेड, मॉनिटर्ड एंड गाइड, एंड यू विल गेट द गाइडेंस नन अदर देन बाय द एनआर if that is the national research foundation, right। और देखो और इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, that for improving equity there will be gender inclusion fund for SC ST and other disadvantaged section, the policy has recommended provision, यानी इसमें जेंडर इंक्लूशन SC ST तबकों की भी बात कही गई है, उन्हें भी कुछ प्रोविजन फंड्स देने की बात की है, लगभग लगभग हर वर्ग को सोच के पॉलिसी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए है, लड़की के लिए नहीं है, SC के लिए है, जनरल के लिए नहीं है, सबके लिए है। एंड ऑल्सो द पॉलिसी एडवोकेटेड द special education for the backward regions, and last they are paying thanks to none other than the Dr. K. Kasturi Rangan and his team for drafting it. It means it is a long run, you can say it is a हॉर्स ऑफ लॉन्ग रेस, लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, ये साबित हो सकता है ये पॉलिसी। SC ST के लिए है, आपको स्किल ट्रेनिंग दे रहा है, रीजनल भाषा सिखा रहा है, इंग्लिश भाषा सिखा रहा है ना, हिंदी तो आपको आप पता ही है, आपको फिर संस्कृत भी सीखने को मिल रहा है, 1 साल पढ़िए आपकी डिग्री, 2 साल पढ़ो आपकी डिग्री, रेशियो जो एनरोलमेंट रेशियो है वो हाई होने वाला है, इट मीन्स यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो दिस इज द बेस्ट पॉलिसी विच आई wanted you to let you know and which I made because many of my students hasn't understood. So my dear students, please go through it, ध्यान से पढ़ो, दोस्तों का ख्याल रखो, क्योंकि दोस्तों के ऊपर भी आपके मार्क्स कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाले हैं। So I'm just here. This is once again your educator Anup Kumar Singh. I'm signing out for today. And if you have any query, any doubt, please, if you like it, please यार share तो कर ही दो, पसंद कर दो और love कर दो इसको, और इसको just spread among your friends. And if you have any doubt, any query, hit me up on my email ID or on my WhatsApp number. Till then, I am just signing off for today. Have a nice weekend ahead. Thank you so much.